Hello students, welcome to JK Toppers Academy. I am Jidhan sir with you on JK Toppers Academy and today we are going to सेंसस के बारे में आपको अगर मैं डियर स्टूडेंट्स बता दूं तो सेंसस जो है 10 साल में एक बार होता है और लास्ट टाइम सेंसस हेल्ड हुआ था सेंसस 2011 में। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट है आपका, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास का लाइकन जो है लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी टाइम बाद हम आपके लिए फिर से ये सीरीज़ जो है लेके आए हैं। सुबह के बज रहे हैं 4 और अभी हम जो करने वाले हैं 80 क्वेश्चंस करेंगे ताल ठोक के सेंसस के, और इसके आगे कुछ नहीं आने वाला। जो भी क्वेश्चन बनेंगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई विल नॉट जस्ट ट्रांसलेट, आई विल जस्ट आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर। आई विल गिव यू 10 सेकंड। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आई विल गिव यू 10 सेकंड, 5 सेकंड आपने कमेंट करना है एंड आफ्टर दैट आई विल टेल द राइट आंसर। ओके, आई विल नॉट ट्रांसलेट इट बिकॉज इट विल बी लेंदी बिकॉज देयर आर 100 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस सीरीज। ओके, सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा चैनल है, आप यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास का बेल आइकन इधर आपको मिल जाएगा, उसको भी आप जो है प्रेस कर सकते हैं। एंड आई एम जिदहान सर विद यू ऑन जेके टॉपर्स अकेडमी। तो आइए कर लेते हैं ये टॉप 100 क्वेश्चन और सेंसस रिलेटेड एमसीक्यूज आपके होने वाले हैं, ठीक है। जेके एसएसबी एसएससी और उसके बाद ले लो जेके पीएससी, सभी एग्जाम्स जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस, इट इज लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ्स एंड डेथ्स इवेंट विद इन हाउ मेनी डेज इन इंडिया। तो फटाफट से राइट आंसर लगाइए। 15 डेज, 21 डेज, 26 डेज और 30 डेज। सो राइट answer is B, 21 days. So next question is question number 2. The dependency ratio in India is declining. Dependency ratio is declining because right answer is C, because population of 15 to 59 years is relatively high. That's why dependency ratio in India is declining. Okay, and the next question is, among the following religious groups, which one has recorded the highest percentage literacy rate as per the 2011 census? So basically here asking highest percentage of literacy rate in religion, ठीक है। among the following religion groups, here in this question they are asking about the highest percentage of literacy rate as per 2011 census. So question number 3 right answer is D. Okay, Jains is the right answer. So next question, question number 4 is in the screen. Let's read. What is demographic dividend? So it is very important topic. What is demographic dividend? So right answer is increase in 16 to 64 years age group of population. It is known as demographic dividend. And these questions are already asked in the previous years questions in some states. Okay, next scene, question number 5. Which one of the following is the most populated state in India? This is very important question, that which is the most populated state in India according to census 2011. So give your comments fast guys, and the right answer goes to C, Meghalaya. Meghalaya is the most populated state in India as per census 2011. Okay, now question number 6. Find the correct arrangement of the following urban agglomerations in descending order as per their population size according to census 2011. Find the correct arrangement. Okay, urban agglomerations in descending order, and the right answer is Mumbai, then Delhi, then Kolkata, and then Chennai. B is the right answer. CDS 2019. Okay, the next question is question number 7. Which one of the following statement regarding sex composition is not correct? So right answer is question number 7, D. In Asia there is high sex ratio. Okay, this is not correct. Otherwise, in some countries, sex ratio is expressed as a number of males per thousand male. Exact correct statement. In India, sex ratio is expressed as number of females per thousand males. This one is also correct. At world level, sex ratio is about 102 males per thousand male. This is correct, but this is not correct. So the right answer will be option D. So question number 8 in your screen. What do you mean by demographic dividend? Okay, what do you mean by demographic dividend? So let me tell you the right answer. The right answer is A. Okay, the rise in the rate of economic growth due to a higher share of working age people in a population is known as demographic dividend. Next question आप देख सकते हैं, which one is the following is the correct descending order of Indian states in terms of their density of population? तो इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर रहेगा, जो डिसेंडिंग मतलब घटते एक इसमें नियंत्रण में जो भारत के राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है कम कम कम, मतलब सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम फिर, ठीक है, सबसे ज़्यादा लेंगे फिर कम लेंगे फिर उससे कम लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर पता है ना आपको। सो क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर इज सी, बिहार, देन वेस्ट बंगाल, फिर केरला, उसके बाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
in India approximately what percentage of households still use firewood for cooking as per 2011 सेंसस। तो घर में जो लकड़ी जलाते हैं, है नहीं, तो इंडिया में 2011 के सेंसस को अगर हम रिपोर्ट लें तो कितने परसेंटेज लोग अभी भी वो जो है करते हैं फायरवुड से जो है खाना बनाते हैं कुकिंग के लिए। तो राइट आंसर है आपका सी, 50% लोग जो हैं अभी भी चूल्हा जो है लकड़ी वाला ही जलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। अब देखिए असेंडिंग में बोलना है आपने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, पहले डिसेंडिंग में बोलना था, अब असेंडिंग में। तो राइट आंसर है इसका, पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम, देन सिक्किम, देन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 12. The rate of population growth during 2001-2011 decade declined over previous decade, that is 1991 to 2001, in all the following state except. So the right answer will be A, Tamil Nadu. Okay. Next question. Question number 13. Which one of the following is the correct ascending sequence of state with regard to percentage of urban population? So right answer is C, Maharashtra, Kerala, Mizoram, Goa. So this is the correct ascending sequence of state with regard to percentage of urban population. That is Maharashtra, then Kerala, then Mizoram, and then Goa. Question number 14. Look at the questions. Which one of the following Indian state has the highest percentage of scheduled tribe population? So in this question they are asking about ST population according to the census only. The right answer is A, Mizoram. Mizoram has the highest percentage of ST population. Question number 15. Which one of the following Indian state has recorded negative growth population as per census 2011? So the right answer will be D, Nagaland. So Nagaland is the state which has recorded negative growth of population census as per census 2011. Question number 16. You may find which one of the following is the correct descending order of Indian state in terms of sex ratio as per census 2011. So for this question actually you have to know about the sex ratio of all the different states, and for these types of question you have to know the population density, the literacy rate, the sex ratio, everything about census and demography of particular Indian states. Okay, then only you can able to solve these kind of questions. So right answer is C, Meghalaya, then Manipur, then Mizoram, then Tripura. So C is the right answer. Now question number 17. Which one of the following union territories has the highest female literacy rate? Look, this question is very simple. They are asking that which UT has the highest literacy female literacy rate. So if some question come into your mind like why not Jammu and Kashmir or Ladakh, then let me tell you one thing, that in 2011 census Jammu and Kashmir is a state at that time, but after that census is not held due to some reason. So we can say the right answer of question number 17 is B, Lakshadweep is the state with the highest female literacy rate. Okay, and next question. And the most populated UT is Delhi, and the least populated UT is Lakshadweep. Okay, question number 18 in your screen. Read the question and answer the question. Answer the following question. From which year was regular and scientific census started in India? Which year regular and scientific census started in India? So the right answer of question number 18 is C, 1881. By 1881, regular and scientific census started in India. So question number 19. According to 2011 census, the density of population in India was. So they are asking density of population in India according to the census 2011. So right answer is C, 382. So question number 20. As per census 2011, the share of population below the age of 35 years in India. So we have to tell the share of the population. So question number 20's right answer is D, 65%. Okay. Now 21. Which one of the following states is ranked economically at the top but lowest on the basis of sex ratio? So in question number 21, they are asking that which one of the state as mentioned below in the options, they are asking that ranked economically at the top but lowest on sex ratio. In terms of economic, they are at the top, but in terms of sex ratio, they are lowest. So right answer is B, Maharashtra. Okay. Question number 22. Have a look. As per 2011 census, which one of the following states has recorded decrease in population? So we have to tell which of the following states has recorded decrease in population, like the population is decreasing. Okay, not increasing, they are decreasing. So the right answer is A, Nagaland.
as we have seen the lowest record of the population in the Nagaland state, so we can say that the population of Nagaland is decreasing. But as per census 2011, remember. Okay. Now question number 23, have a look. Which one of the following states has the lowest percentage of scheduled tribe population as per of its total population according to the census 2011? So they are asking about ST population in state which having a lowest percentage. So question number 23, right answer is A, Uttar Pradesh. So there is a low percentage of scheduled tribe in Uttar Pradesh. Okay. Question number 24. As per census, which one of the following is the correct descending order state in India in respect of sex ratio female per thousand male? In this question, they are asking about sex ratio in descending order in the following states. So the right answer is C, Uttarakhand, West Bengal, Madhya Pradesh and then Jammu Kashmir. तो सबसे ज़्यादा जो है सेक्स रेशियो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लास्ट में जम्मू कश्मीर आता है, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में। इसके लिए आपको जो है इसका सेक्स रेशियो देखना पड़ेगा स्टेट्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हैव ए लुक। 25 से 29 तक कर लेंगे। ओके। 25 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो देखिए, एक पर्सन एज 7 एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिटरेट। तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि एक इंसान जो पढ़ना जानता है, एक बच्चा जिसकी एज 7 साल की हो, वो जो लिखना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है, दे आर कंसिडर्ड एज लिटरेट। ठीक है। और एक पर्सन जिसकी एज 8 है और जो लिखना पढ़ना जानता हो, अंडरस्टैंडिंग हो लैंग्वेज की, उसको नहीं। 7 ईयर्स आप याद रखिए, बाकी हम कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, द फेनोमेना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ ए कंट्री रिलेट्स टू। सो व्हाट इट एक्चुअली रिलेट्स टू? क्वेश्चन नंबर 26, द राइट आंसर इज डी, एन इंक्रीज इन सेक्स रेशियो। तो जब सेक्स रेशियो इंक्रीज होता है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री का उसको रिलेट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, डैश रेफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। तो क्या चीज़ रेफर करती है बर्थ्स में किसी एक गिवन पीरियड में, जिससे क्या पॉपुलेशन को ऐड हो जाता है इनिशियल डेंसिटी में? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का ए, नेटलिटी है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन विच द अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज लोएस्ट। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है। इसमें बोला है स्टेट की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो लोएस्ट है, तो वो ये है आपको मिजोरम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेट। इन स्टेट को हमने कंसीडर करना है और बाद में यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सी स्टेट की परसेंटेज जो है स्टेट की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन इंडिया बेस्ड सेंसस से है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो 29 का सही आंसर है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, वो है सी, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। उससे फिर जो आएगा दूसरे नंबर पर वो आएगा हरियाणा, फिर आएगा उसके बाद राजस्थान और फिर आएगा बिहार। यह है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे कम पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की है, उसके बाद है आपकी ये क्या बोलते हैं हरियाणा की, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा हरियाणा की है, तो उससे ज़्यादा फिर आएगी आपकी राजस्थान की, फिर सबसे ज़्यादा है बिहार की। ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो क्या होता? सबसे पहले आता बिहार, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर, इफ़ इट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन क्या पूछा है? असेंडिंग ऑर्डर। और ये क्वेश्चन एनडीए 2017 में आया, बहुत जगह आते हैं, बस बुक्स पे ये इतना मेंशन नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो फटाफट से आंसर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो। आपके क्या व्यूज़ है भाई साहब, कमेंट करो। यू मस्ट कमेंट। ओके। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी। 2001 से लेकर 11 तक जो डिकाडल जो है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 19.05%। ठीक है। 31 देखिए, विच कम्युनिटी हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया एज डिस्क्लोज्ड इन द एडिशनल डाटा परटेनिंग टू सेंसस 2011 लेटर रिसेंटली। किस कम्युनिटी का जो है सेक्स रेशियो जो है बिल्कुल कम है? तो 31 का सही आंसर है बी, सिख कम्युनिटी का। ठीक है। सिख कम्युनिटी का सेक्स रेशियो क्या है? कम है। अब 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। किसकी लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 32 का? फटाफट से आंसर दीजिए। राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश है नहीं। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। और हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? हाईएस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? राइट आंसर है भाईजान इसका गोवा है नहीं। सबसे ज़्यादा शहर उधर ही होंगे, गोवा में ही है नहीं, गाँव कितना ही होगा उधर है नहीं। तो सबसे ज़्यादा वो कौन सा है अर्बनाइज्ड स्टेट? गोवा। 34 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन। देखो नेगेटिव कौन से स्टेट ने रिकॉर्ड की है? अभी ऊपर पड़ा था, लोएस्ट भी है उसकी नागालैंड। ठीक है।
35 देखिए आप, ऑल इंडिया सेंसस को क्या फर्स्ट अटैम्प्ट 1872 में किया था, या फिर रेगुलरली अंडरटेकन किया था 1881 में, या फिर ऑलवेज अंडरटेकन किया 5 ईयर एक्सरसाइज में। तो जो राइट आंसर है इसका वो है बोथ 1 एंड 2। ठीक है, मतलब आपका सी जो पार्ट है वो राइट आ जाएगा। 36 देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंसस ही सारे क्वेश्चन है ये 2011 के। तो बोलता है इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस से स्टेट्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। क्या पूछा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनका टोटल साइज और पॉपुलेशन। तो सही जवाब है इसमें केरला। केरला के बाद जो डिक्रीजिंग हो रहा है झारखंड आएगा, फिर डिक्रीज आसाम में आएगा और लास्ट में आएगा पंजाब। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन देखिए, 37 में बोलता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग शेड्यूल्ड कास्ट एससी पॉपुलेशन इन इंडिया आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एससी पॉपुलेशन के लिए करेक्ट है। तो हाईएस्ट परसेंटेज जो पॉपुलेशन की आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज फाउंड इन पंजाब। तो बोलते हैं पंजाब में मिलती है, लेकिन राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है कि सेकंड लार्जेस्ट स्टेट जो है रिस्पेक्ट ऑफ टोटल एससी पॉपुलेशन इन इंडिया में, तो वो है बिहार। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब 38 देखिए, अरेंज करना है इन स्टेट को डिक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज में। ठीक है, तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका बिहार, फिर आएगा आपका वेस्ट बंगाल और लास्ट में आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन कम है। ठीक है, तो 39 देखिए, एज पर सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस। तो कौन से जो मतलब स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राइट आंसर इज ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 40 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस डिकेड्स इंडिया रजिस्टर द लोएस्ट परसेंटेज इन पॉपुलेशन। तो कौन से साल में या फिर कौन से डेकेड में, मतलब जो 10 साल का गैप होता है जिसके बाद सेंसस होता है, तो इंडिया ने रिकॉर्ड किया है लोएस्ट परसेंटेज यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन। तो 40 का सही आंसर है डी। ठीक है, 2001 से लेके 2011 तक। अब नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेकेड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इंडिया वाज द हाईएस्ट। और कौन से डेकेड में इंडिया की पॉपुलेशन रेट जो है वो हाईएस्ट रहा है। तो सही आंसर है आपका 41 का बी, 61 से लेकर 71 के बीच में। 1961 से लेकर 71 के बीच में जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल आपका हाई रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए यहाँ पे आप, एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोवेस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। देखो हाईएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो था वो था गोवा का। ठीक है, लेकिन लोवेस्ट किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि द स्टेट विच रैंक्स नेक्स्ट टू केरला इन टर्म्स ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 43 का जो राइट जो आंसर है वो आपका है, फटाफट से कमेंट कीजिए आप। राइट आंसर इज ए, मिजोरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011। 2011 में किसका सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो था? फटाफट से कमेंट कीजिए 44 का राइट आंसर। तो वो है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु का सेक्स जो रेशियो है बहुत ज़्यादा था 2011 में, मतलब हाईएस्ट था, मान लो हाईएस्ट था। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखिए, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का सेंसस देखा जाए तो कौन सी स्टेट की लोवेस्ट परसेंटेज था चाइल्ड पॉपुलेशन रूरल एरिया का। ठीक है, तो गाँव के एरिया का जो चाइल्ड का शेयर था पॉपुलेशन का सबसे कम था, कौन सी स्टेट का था? तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपका डी, हरियाणा। देखो 50 क्वेश्चन हम करेंगे, आपको ये क्वेश्चन बेशक पहले समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसको करेंगे। और इससे इजी लेवल भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए अगर ये लेवल आपको बिल्कुल JKPSC लग रहा है या फिर IAS का लग रहा है। तो पॉपुलेशन डिविडेंड, अब पॉपुलेशन डिविडेंड का मतलब क्या होता है? तो सही जवाब है यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन को पॉपुलेशन डिविडेंड कहते हैं। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो कौन सी स्टेजेस को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं? तो सही जवाब है इसका डी, यानी कि 1 and 4, हाई डेथ रेट हो और बर्थ रेट हो और लो ग्रोथ रेट हो। मतलब एकदम जो डेथ रेट हाई है और बर्थ रेट भी सेम है, मतलब हाई है, जन्म भी बहुत फटाफट हो रहा है, मौतें भी बहुत फटाफट हो रही हैं, लेकिन ग्रोथ जो हो रही है बिल्कुल लाहे मतलब आराम से हो रही है नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो ये होगा और दूसरे पे देखिए लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट, और मतलब एकदम आराम से लोग मर रहे हैं, है नहीं? आराम से मर रहे हैं, मतलब एक लो डेथ रेट है, मतलब ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं, है नहीं? बर्थ रेट भी मतलब नॉर्मली है, लेकिन ग्रोथ क्या है? बड़ी कम हो रही है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये इसका आएगा
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसे कहते हैं। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन करेंगे, अगर आपके कमेंट्स आए तो उसके आगे भी हम करेंगे, इजी लेवल भी लाएंगे। देखो एसएससी मल्टीटास्किंग मतलब 48 में देखिए, इनमें से विच इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट पूछा है। ठीक है, तो सही जवाब इसका बिहार ही आएगा, है नहीं, क्या आएगा, बिहार आएगा। 48 का आएगा, सॉरी बिहार नहीं, महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र आएगा। 48 का राइट आंसर है ए, है नहीं, बिहार तो पहले नंबर पे आएगा। 49 देखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या शो करता है, वो शो करता है मैन लैंड रेशो। ठीक है, कितने जगह एरिया में कितना इंसान रहते हैं, तो वो उसका मैन लैंड रेशो शो करेगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो देखिए, विच ग्रुप प्रेफर्स टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन इन द पॉपुलेशन पैरामिड। तो कौन से ग्रुप में जो रेफर करता है पॉपुलेशन को, ठीक है, पॉपुलेशन पैरामिड में, पैरामिड ऐसा जैसा होता है ना, तो उसके कौन से ग्रुप में ये रेफर करता है। तो सही जवाब है इसका अबोव 60 ईयर्स ऑफ ग्रुप। 60 ईयर्स ऑफ ग्रुप हो जाएगा, जिसकी उम्र 60 ईयर्स अब हो जाएगी, उसको पॉपुलेशन पैरामिड में ये डिस्क्राइब करते हैं। फिलहाल के लिए हम ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं। कमेंट कीजिए कि इनमें से कौन सी यूटी है जिसमें फीमेल लिटरेसी हाईएस्ट है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी शायद थोड़ी देर पहले किया था 51 का, अभी मैंने पहले भी ये कराया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, फटाफट बोलिए। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करो, पास का बेल आइकन जरूर दबाओ। ये गाना मैंने गा लिया। अब मेरे से एक बार इंपॉर्टेंट सुनो कि आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फटाफट बताओ और हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, आगे भी आपको जुड़ना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे भी जुड़ना है। कोई भी सोर्स आप ले लो, कहीं से भी आप पढ़ो, लेकिन आपने एंड तक पढ़ना है। मल्टीपल सोर्सेस में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको क्रैक करना है तो आपको एक जगह, एक सोर्स ही आपको उठाओगे और रिवीजन भी करनी है। ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद पीपीटी आपको देंगे, आपने रिवीजन करनी है, वो आपके एंड तक है। और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मैं आपको एंड तक पढ़ाऊँगा, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जीके जम्मू कश्मीर का, और जनरल नॉलेज, और जो भी आपके कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, और स्पेशल रेफरेंस J&K का। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, कुछ पैसा नहीं लेंगे आपसे, कुछ भी नहीं, बस एक लाइक कर दो अपनी ओर से, एक लाइक और एक शेयर। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर का जो जनरल नॉलेज है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का टॉपिक है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। टॉपिक का नाम क्या है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स। ठीक है, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है क्रॉप से, याद रखना मेरी बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, तो वो देखिए, ध्यान से देखिए, और अपना आंसर भी लगाना है कमेंट में। ये नहीं कि हाँ जी ये फिल्म देखने बैठ गए हैं, सर बोल रहे हैं, चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्प्रिंग क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन। तो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में स्प्रिंग क्रॉप कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है कॉटन एंड टबाको, राइस एंड लेटनिस, पीज एंड बीन्स, वीट एंड बार्ले। तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में जो चीफ स्प्रिंग क्रॉप है वो है आपका वीट एंड बार्ले। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ टिपिकल मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो कौन से पार्ट में है टिपिकल मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन है नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। और राइट ऑप्शन है यहाँ पे, राइट आंसर है आपका साउदर्न। ठीक है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ इज सैफरन ए कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड ए कश्मीरी इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो सैफरन के ऊपर भी बहुत हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको लोकली क्या जो नाम है इसका क्या है, कश्मीरी लैंग्वेज में सैफरन को क्या नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब जो है इसका है, यह है कोंग, कुंग कोंग, है नहीं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच वन इज़ नॉट करेक्ट। तो देखिए ये 4 सीजन्स के नाम हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में है नहीं, और इंग्लिश में है। तो इसमें से कौन सा जो करेक्ट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें से स्प्रिंग ग्रीष्म जो है करेक्ट नहीं है। बाकी आइस कोल्ड को शिशिर बोलते हैं, ऑटम को हरुद बोलते हैं, विंटर को वंदा बोलते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, तो स्प्रिंग को क्या बोलते हैं कश्मीरी में, वो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो गलत है नहीं, तो इसको बोलते हैं सोंत, SONTH। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हॉटेस्ट मंथ कौन सा है जम्मू में। जम्मू में सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन सा रहने वाला है, हॉटेस्ट मंथ ऑफ इन जम्मू। तो राइट आंसर जो है इसका, फटाफट से कमेंट कीजिए, अप्रैल है, मई है, जून है या फिर जुलाई है। तो सही जवाब है आपका, जो आपका सबसे गर्मी वाला महीना होता है जम्मू में, तो वो है आपका जून। ठीक है, जून सबसे ज़्यादा गर्म महीना माना जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आलमगीर, आलमगीर नाम है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ J&K रेफर्स टू, तो किसको रेफर किया जाता है कि आलमगीर क्या है? तो ऑप्शन है वाइड स्प्रेड विंटर रेन्स, या फिर हॉट और ड्राई समर विंड, ऑप्शन 3 है कूल नाइट माउंटेन विंड, या फिर चिल्ली विंड इन ऑटम सीजन। ठीक है, ऑटम सीजन है, राइट ऑप्शन है इसमें वाइड स्प्रेड विंटर रेन। अगला सवाल देखिए, सैफरन ब्लूमिंग ऑकर्स इन सीजन। ठीक है, तो सैफरन जो है जब ब्लूम करता है कौन से सीजन में करता है? तो सही जवाब है आपका ऑटम में, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर बेनिफिशियल फॉर, तो किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है, कौन से क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? तो फटाफट से आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ, राबी क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि कठुआ, सांबा, उधमपुर ये कौन से क्लाइमेट जोन में हैं जम्मू एंड कश्मीर के? जम्मू एंड कश्मीर के कौन से क्लाइमेट जोन में कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, कौन से क्लाइमेट जोन में लाई करते हैं? तो राइट आंसर है इसका सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन में ये लाई करते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रीन पे, देखिए दो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। तो कश्मीर वैली रिसीव हैवी रेनफॉल, जैसे आपको पता है कि कश्मीर वैली जो है हैवी रेनफॉल वहाँ पे होता है और स्नोफॉल अभी भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इन विंटर में, ठीक है, और प्री मानसून सीजन में, और ये किसके वजह से होता है? ये किसके वजह से होता है? तो अभी अभी हमने कुछ पढ़ा था, दिमाग में रखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कश्मीर वैली में रेनफॉल होता है और हैवी रेनफॉल और हैवी स्नोफॉल होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ऑटम सीजन इन कश्मीर एंड लद्दाख वैली इज़ नोन एज, लद्दाख में और कहाँ पे, कश्मीर में ऑटम सीजन को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका हरुद, हरुद इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो बच्चे कश्मीर से हैं उनको तो पता ही होगा, है नहीं? तो जो जम्मू रीजन से हैं, जम्मू डिवीजन से हैं, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ J&K रिस्ट्रिक्ट द कल्टिवेटर फ्रॉम कन्वर्टिंग द इरिगेटेड लैंड इनटू ऑर्किड्स? और देखिए इसमें क्या बोला है, ये देखिए ये मिसटाइप हो गया है कि कौन सा एक्ट है J&K का जो रिस्ट्रिक्ट करता है, पाबंदी लगा देता है कि जो कल्टीवेटर्स हैं, ठीक है, वो अपना जो है कन्वर्ट करेंगे इरिगेटेड लैंड ऑर्किड्स में, बाग नहीं बना सकते हैं। कौन सा एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है? तो ये है कन्वर्जन एक्ट ऑफ लैंड एलिनेशन ऑफ ऑर्किड्स 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग समर सीजन ए कोल्ड विंड डिसेंट फ्रॉम शिवालिक्स, तो जो कोल्ड विंड हमें देखने को मिलता है कहाँ से? शिवालिक से। इन नाइट इन जम्मू, बहुत सर्दी दिखने को हमें मिलती है कहाँ पे? समर में। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, राइट आंसर है दादू। ठीक है, डाडू या दादू। अगला सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू कश्मीरी कैलेंडर सीजन्स इन कश्मीर, देखो जो कश्मीरी कैलेंडर है, जो सीज़न है कश्मीर के, उसको कितने पार्ट्स में या फिर कितने सीजन्स में डिवाइड किया गया है? तो जो अकॉर्डिंग टू कश्मीरी कैलेंडर है, तो सीजनों को 6 सीजन्स में जो है डिवाइड किया गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे ही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन? तो विंटर सर्दियों में कौन सा क्रॉप है जिसको हम लगाते हैं और हार्वेस्ट उसकी जो कटाई होती है वो स्प्रिंग में होती है नहीं, जब फूल खिलने लगते हैं? तो राइट आंसर है इसका राबी क्रॉप। राबी क्रॉप में कौन कौन से आते हैं? फटाफट से कमेंट करो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट लद्दाख इज, तो लद्दाख क्या है? कॉपन क्लासिफिकेशन की माने तो DWD, है नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन मानसून विंड एंटर जम्मू प्लेन्स, तो मानसून विंड जो है, जो ये तेज़ हवाएं हैं, ये कब जम्मू प्लेन्स में एंटर करती हैं? तो राइट आंसर है लास्ट वीक ऑफ जून, जून के जो है लास्ट वीक में ये एंटर करती हैं जम्मू में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेड सेंटर, इसको देखो फुल फॉर्म भी याद रखना, IISKSTC कहाँ पे लोकेटेड है? तो सीधी सी बात है, पैम्पोर में लोकेटेड रहेगा ये, है नहीं? क्योंकि सैफरन कहाँ से, मतलब सैफरन कहाँ पे है, उगाया जाता है पैम्पोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच क्लाइमेट जोन J&K लाइज, तो J&K कौन से क्लाइमेट जोन में लाई करता है? तो सब ट्रॉपिकल जोन में J&K है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा सीज़न है कश्मीर का जिसको बोलते हैं ग्रीष्म? ठीक है, ग्रीष्म सीज़न जो कश्मीर का है वो कौन सा सीज़न है, मतलब किस महीने के बीच में आता है? तो सही जवाब है आपका मिड मई से लेके मिड जुलाई तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राबी क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ्स, तो कौन से महीने में राबी क्रॉप्स जो हैं लगाए जाते हैं? फटाफट से आंसर करो, अप्रैल में, मई में, है नहीं, मई जून में, अक्टूबर नवंबर में, या फिर जनवरी फरवरी में? तो राइट आंसर है इसका अक्टूबर एंड नवंबर में राबी क्रॉप जो है वो सोन किए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूटी ऑफ जे हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। जे यूटी को कितने एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन है आपके पास 7, 2, 6, 4। राइट आंसर है 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप। तो इनमें से राबी क्रॉप कौन सा है नहीं, कौन सा है राबी क्रॉप? तो सिंपल सी बात है, मस्टर्ड। मस्टर्ड है राबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स मानसून विंड टू एंटर कश्मीर वैली कश्मीर वैली। देखिए कौन सा माउंटेन रेंज है जो प्रिवेंट करता है मानसून विंड को, ताकि वो एंटर करेंगे कहाँ पे? कश्मीर वैली में। तो उधर कब सबसे करीबन कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 ये है, पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज जो है ये प्रिवेंट करता है मानसून के विंड्स को कश्मीर वैली में एंटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम ऑफ अम्बरी वैरायटी। अम्बरी वैरायटी के जो होम है एप्पल का, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? तो सही जवाब है आपका, यहाँ से चलेंगे तो शोपियन है नहीं, शोपियन इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतने ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो है पूछ लेता है कभी कभी, हालांकि बच्चों को पता ही होगा, फर्स्ट एलजी कौन थे जे के? फर्स्ट एलजी ऑफ जे। ठीक है। तो नाम था, क्या नाम था? जीसी मुर्मू। क्या नाम था? गिरीश चंद्र मुर्मू, MURMU। तो प्रेजेंट जो है सबको पता है, प्रेजेंट में कौन चल रहा है सबको पता है। प्रेजेंट में है प्रेजेंट में है मनोज सिन्हा। और क्या पूछता है? और ये पूछता है कि बताओ जी हमारा जो जे का स्टेट बर्ड है वो कौन सा है? जे स्टेट बर्ड। तो जे स्टेट बर्ड भी आपको पता ही होगा, खालिज फिशन है नहीं। और उसके बाद जे का जो है यूटी ट्री कौन सा है नहीं, स्टेट नहीं अब यूटी है, तो यूटी ट्री कौन सा है? तो इसके ऊपर भी हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इस सेशंस को जो है लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको कमेंट करो आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, और हम डेली 25 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का यहाँ पे पेपर हमें देखने को मिला है जेके एसएसबी के जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और चैनल को पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस होने वाली नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन। 12 का अर्थमेटिक मीन जो है यहाँ पे निकालना था। ठीक है, 12 नंबर्स का, और ये नंबर भी यहाँ पे दिए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि इस बच्चे ने सही निकाला है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे एवरेज का क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जिनके एवरेज 35 है, और लेटर ऑन जो ऑब्जर्वेशन है 83, जिनका है 53। तो करेक्ट एवरेज क्या होगा? तो इसका जो है बिल्कुल सही निकाला है बच्चे ने। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका भी डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एवरेज वेट जो है 6 स्टूडेंट का है 50 kg। अगर 2 स्टूडेंट का 51 kg है तो 2 स्टूडेंट्स का 55 kg है, तो एवरेज वेट निकालना था। ठीक है, कंबाइन में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट है 51.2 kg, बिल्कुल सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कॉस्ट प्राइस है रेडियो की, ये है परसेंटेज से आपका क्वेश्चन आया है। बोलता है अगर द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस चार्ज ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो प्राइस रेडियो की 600 है और 5% जो है चार्ज की जाती है ट्रांसपोर्टेशन में, तो अगर उसको ऐड किया जाए तो प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो बनेगा 15% बनेगा। तो प्राइस क्या होगी रेडियो की? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका ए, 724.50। सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ से प्रेफर भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेलिंग एक आर्टिकल को बेचना है 960 में। ठीक है, और मैन इनकर से लॉस, एक आदमी को 4% उसका लॉस होता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? तो 5 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी पार्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक कार जो है, अगर बाई सेलिंग ए कार, अगर एक कार को सेल करते हैं 64,000 रुपीज़ में मिस्टर राव, और 20% का उनको लॉस होता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी कार की? तो बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे थे, लेकिन आपको बेसिक को ही तैयारी करनी होती है। तो 6 का जो राइट आंसर है आपका वो है ए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ए, ये वाला राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे अब, ए मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, तो डायरेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है इंसान, उसके बाद 4 किलोमीटर राइट जाता है, फिर वो लेफ्ट के लिए 5 किलोमीटर मुड़ता है, ठीक है। तो फाइनली वो कौन से डायरेक्शन में होता है, तो 7 का राइट आंसर है बिल्कुल बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि देखिए सिटी डी जो है बोलता है वेस्ट सिटी है एम की, सिटी आर जो है साउथ सिटी है डी की। अगर बोलता है के ईस्ट सिटी है आर की, तो इनमें से कौन सी डायरेक्शन में के सिटी जो है लोकेटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटी डी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है आपका वो है डी, ठीक है, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बॉय जो है डायरेक्शन से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोच लो फिर ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बॉय जो है पहले जाता है साउथ डायरेक्शन में, फिर टर्न करता है लेफ्ट, फिर ट्रेवल करता है डिस्टेंस, और कुछ टाइम बाद वो टर्न करता है राइट, फिर मूव करता है कुछ डिस्टेंस, और उसी बीच में टर्न करता है लेफ्ट, और अगेन फॉर सम डिस्टेंस। अब बोलो कि कौन से डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन से यहाँ पे 3 क्वेश्चन का भी हमें देखने को मिले हैं, और सेट ये डी है। तो 9 का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है आपका बी, ठीक है, ईस्ट में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10, 11, 12, 13 फटाफट से है। तो अब यहाँ पे देखो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ये इस कोड में है तो इसका क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कोडिंग है, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये कोडिंग से पूछ लिए। फिर देखिए पॉइंटिंग ए वुमन, ये ब्लड रिलेशन के भी यहाँ पे देखो 1, 2 पॉइंटिंग वाले 2 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी पूछ लिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बन गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16 आईसी चिप्स फॉर कंप्यूटर्स का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कंप्यूटर के 1, 2, 3 मतलब 4, फिर 5, फिर देखो काफी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हैं। तो 15 का क्वेश्चन क्या है, 15 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का ये है आपका ए, सिलिकॉन, ठीक है। आईसी चिप्स कंप्यूटर की होती हैं जो कौन सी मेटल के बनती हैं, सिलिकॉन की। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, 16 का भी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे लिखा है कि जो ड्राफ्ट फोल्डर होता है उसका मतलब होता है कॉपी, वो एक हमारी रखता है ईमेल मैसेज की, ठीक है, जो रेडी होता है भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है माइक्रो, राइट एज मैक्रो इन एमएस एक्सेल। तो 17 का जो सही जवाब है आपका वो है ए, वो कौन सी है, वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज टू, जिसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैक्रो एमएस एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ काउंट इफ इन एक्सेल। तो फंक्शन क्या है काउंट इफ का एक्सेल में। तो 18 का जो सही जवाब है वो है आपका काउंट सेल स्पेसिफाइड, ए सही जवाब है, ठीक है। अब देखिए 19, 20, 21 मतलब 5-7 क्वेश्चन इनमें कंप्यूटर के पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कंप्यूटर फायरवॉल क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर फायरवॉल क्या होता है, ये बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं महाशय कि ये सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर बेस्ड प्रोग्राम होता है जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट थ्रेट को और बनाता है इंटरनेट को सिक्योर नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हैड कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, और इसके लेआउट भी होंगे, बैकग्राउंड भी होंगे, मतलब एक ऐसा डिजाइन ऑलरेडी बना होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं। फटाफट से आंसर कीजिए अगर आपको आता है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे डी, टेम्पलेट बोलते हैं उसको। 21 देखिए, 21 देखिए इसमें क्या दिया है कि मतलब सीरीज में बताना है आपने कि पहले क्या हुआ था, ठीक है। ग्रीन फ्लो स्कैटर्ड स्टेटमेंट है इसमें ऑफ 2 सेंटेंसेस इंडिकेट करंट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के ऊपर ये क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इसके आंसर की भी मैं आपको जो है इसी पेपर के साथ अटैच करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश का भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है, 4 पार्ट्स में क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस, स्पीच के ऊपर आया है, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिए, उसने कहा कि मैं मार्केट यहाँ पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। तो राइट आंसर क्या होगा, ही सेड दैट, उसने कहा ही वाज गोइंग टू द मार्केट नाउ। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका आंसर है ये वाला राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना था मॉडल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या बोला है इन्होंने,
वी dash have locked the gate when the dog wouldn't have to go out. तो have we ought to have, अब इसमें से we may have locked, ought to आएगा इधर, ठीक है। we ought to have locked the gate, the dog wouldn't have go out, ठीक है। तो इसमें ए इसका राइट जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 देखेंगे। 25 देखो आर्टिकल्स में से स्टडिंग इन सुधा स्टडिंग इन कैनेडियन यूनिवर्सिटी, एक खास यूनिवर्सिटी है सुधा जहाँ पे पढ़ रही है, कैनेडियन यूनिवर्सिटी है। फ्रॉम देयर इट वाज टेक डिश फॉर हर, तो देखो कितना टाइम लगेगा वहां से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वो आएगा डी, कि मतलब सुधा कहाँ पे है, कैनेडियन यूनिवर्सिटी में है, तो यहाँ पे ए लगेगा इसके लिए। और इट विल टेक एन आवर, और मतलब साइलेंट जैसे है नहीं, और यू आर, और तो यहाँ पे कौन सी साउंड है, आर्टिकल की वावल साउंड है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये फिर पैसेज आया था, ठीक है, पैसेज से ही आपने यहाँ पे जो बताना था, पैसेज की क्वेश्चन भी थे। नाइस नाइस। होमोफोन्स, होमोफोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोफोन्स और होमोनिम्स, ठीक है, तो इनमें से कौन से हैं, बैग, अक्रॉस, हियर, व्यू। तो इसमें होमोफोन पूछे थे। होमोफोन होता है जिनके मतलब शब्द सेम होते हैं, अर्थ अलग होता है, उसको होमोफोन्स कहते हैं। तो 28 में देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो राइट आंसर इसका हियर ही होगा। बैग्स, अक्रॉस, व्यू इसका सेम है, ठीक है, हियर यहाँ पे अलग है। 29 देखिए पंक्चुएशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, करेक्ट पंक्चुएशन कौन सी है। तो Jaya said they were getting really excited and were shouting come on. Jaya said they were getting really excited and were shouting come on. अब देखो Jaya said के ऊपर कामा है, और इधर देखिए Jaya said कामा टी छोटा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आना था। Jaya said they, ये भी गलत, said इधर कामा नहीं है, ये भी गलत, तो आंसर क्या आना था, पहला वाला ऑप्शन। अब देखो सिनोनिम पूछा था गलैंट का, 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका वेलिएंट, ठीक है, वेलिएंट होता है इसका ग्लांट का। अब देखो एंटोनियम पूछा था आइडियोसिंक्रेसी, तो 31 का जो राइट आंसर है आपका वो है बी, कॉनोफॉर्मिटी। अब देखो ये क्या पूछा था, एक आइडम भी पूछा था, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, वाओ। 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, नैरो अवॉइडिंग समथिंग, कुछ चीजों को बहुत नैरोली अवॉइड करना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी आया है आपका। शी स्टूड डैश द विंडो, लॉस्ट इन डैश हर फ्यूचर प्लान्स फॉर अपकमिंग ईयर, तो देखो वो विंडो के साइड, तो शी स्टूड बाय द विंडो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर आएगा वो है आपका ए, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं सही बोल रहा था, ये वाला नहीं, बाय द विंडो आएगा, है नहीं। लॉस्ट इन द थॉट, कौन से थॉट में, अबाउट हर फ्यूचर, तो ये बेटा आपका गलत है, तो ये ए सही जवाब है। 33 देखिए, द टीम वर्क टायरलेसली, टीम ने बड़ी मेहनत की, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये। अब कैसे उसने मेहनत की, डेज द गाइडेंस ऑफ हर कोच, ठीक है, टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस डेज चैलेंजिंग सीजन। तो 34 का राइट आंसर जो है वो है सी, अंडर द गाइडेंस, किसी के अंडर गाइडेंस में है नहीं, लेकिन दो ऑप्शन यहाँ थे। लेकिन लास्ट में क्या, ड्यूरिंग द चैलेंजिंग सेशन, जब सेशन बहुत ही चैलेंजिंग था तब टीम ने मेहनत की। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फेयरवेल, ये क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक, क्या बनाई जा रही है, फेयरवेल पार्टी अगले हफ्ते। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड नेक्स्ट वीक, या फिर ए फेयरवेल पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक, या फिर ए फेयरवेल पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक, या फिर ए फेयरवेल पार्टी विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक। तो इनमें के पूरा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव से हमने पैसिव में करना है ये। तो 35 पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा बिल्कुल, पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देम नेक्स्ट वीक, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गए टेल लेने। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इस सीरीज में से जो सबसे सही जवाब क्या है, तो 36 का राइट आंसर है आपका बी, ठीक
ठीक है, बिल्कुल सही जवाब निकाला इन्होंने, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। 37 का देखिए ये भी सीरीज से फिर से आया है, तो 37 का राइट आंसर है आपका देखिए डी, बिल्कुल सही जवाब है नहीं, राइट आंसर है। और 38 का क्या है, रिलेशनशिप एक बिट कितना होता है, एक बाइट कितना होता है नहीं। 38 का सही आंसर है आपका, मतलब एक बाइट होता है 8 बिट, 8 बिट। देखो कितना कंफ्यूज किया है, एक बिट 8 बाइट नहीं होता है, एक बाइट 8 बिट होता है। हम सही जवाब ही देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे। पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम, ये बड़ी बार क्वेश्चन आया है, परमवीर समझ लो इसको, परम, PARAM, परम, ठीक है, इतना ही याद रखो। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम। सेकंड थर्ड के बुक्स में भी ये आ जाइए। मेटा, इनमें से कौन सा जो है प्रोडक्ट है मेटा का, तो इंस्टाग्राम मेटा का है, फेसबुक मेटा का है, व्हाट्सएप मेटा का है, तो बाकी सोचने का नहीं। देखो कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आए हैं ऐसा। ई कॉमर्स, देखो एक बात मेरी याद रखना कि एक बार जीकेपी 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, या फिर कुछ ऐसे ही टाइप क्वेश्चन आया था। फेसबुक नहीं, फेसबुक ई कॉमर्स वेबसाइट बोला है नहीं। 41 का क्या सही आंसर आएगा ये बताओ सर। ठीक है, तो फेसबुक नहीं है, बुक माई शो में भी बुक करते हैं टिकट है नहीं, फेसबुक में ऐसा कुछ नहीं होता, अमेजोन और जियो में भी होता है, तो राइट आंसर है इसका फेसबुक। क्वेश्चन नंबर देखो 20, वाह क्या बात है, ये चीज आ गई थी, मतलब बड़ी बेसिक चीज, लोग फिर भी बोल रहे थे पेपर लेंथ थी ये लो, मतलब ये आना एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल है, इसको देख के लगता है मुझे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को हम क्या बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए फटाफट कमेंट करके। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को हम बोलते थे क्या, यूज वैक्यूम ट्यूब होती थी, ठीक है, और सेकंड को हम क्या बोलते थे, फीचर ट्रांजिस्टर। थर्ड को हम क्या बोलते थे, बोलिए, थर्ड को बोलते थे हम इंड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ को हम क्या बोलते थे, फोर्थ को यूटिलाइज्ड माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ को हम बोलते थे फोकस ऑन पैरेलल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी चल रहा है, करंट और फिफ्थ जनरेशन। तो ये स्क्रीन शॉट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो आ भी गया एग्जाम, कितने अच्छी किस्मत है, हर बार पेपर ऐसा नहीं आता है, ठीक है। लेकिन बड़े लोग सोचते हैं, ये पढ़ के ही नहीं जाते हैं कि हाँ जी ये तो आएगा नहीं, ये तो बहुत बेसिक पूछ लिया है, अब अंदर अंदर से पढ़ते हैं बिल्कुल कार्बन कॉपी इसका, कंप्यूटर का, मेल का, लेकिन देखो कहाँ पे अटकाता है। अब किस्मत अच्छी सी, जिसने बेसिक रिवाइज किया है उसने तो ये कर ही लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर के ऊपर ये स्टेटमेंट है। तो 43 का जो आपको राइट आंसर है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, किसको पता है तो वो कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो वो है C 2 3 4, तो ये वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या है, ये एक्ट करता है एज ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, ठीक है, एप्लीकेशंस के जो उसमें यूज होती हैं, और ये इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को कि कैसे कम्युनिकेट करें डिवाइस के साथ, ट्रांसलेट करें, है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस भेजता है लैंग्वेज के फॉर्म में, और जो है नेसेसरी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एग्जांपल जो है प्रिंटर ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, मदरबोर्ड, रोम ड्राइवर एक्सेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए फटाफट से, एक्सटर्नल एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस। अब देखिए पहले इनपुट डिवाइसेस पूछता था, आउटपुट आजकल क्या पूछने लगा कि क्या एग्जांपल है इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस की। 44 का राइट आंसर जो आपका होने वाला है वो है ए पार्ट, वीडियो कार्ड, ठीक है, ए आपका राइट आंसर है। 45 देखिए, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, पहले रैम रोम पूछता था, आजकल डीएमए पूछ लिया। डीएमए कंट्रोलर फीचर जो है कंप्यूटर का, वो क्या करता है। 45 का जो सही जवाब है आपका वो है ए, ट्रांसफर करता है डाटा मेन मेमोरी से विदाउट इंटरवेंशन ऑफ सीपीयू, सीपीयू के बिना इंटरवेंशन के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो भी बच्चा इसको वॉच कर रहा है शेयर भी करे और लाइक भी करे।
अब रियल टाइम, इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो सही आंसर है इसका पाम ओएस, ये नहीं है रियल टाइम ऑपरेट, बाकी आरटी लिनक्स है, क्यूएनएक्स है, वीएलवॉक्स है। ठीक है, अब 47 देखिए, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आए थे, है नहीं। 47 देखो, ये लिस्ट है एक, इसमें बोल रहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से करो, तो कट पेस्ट का शॉर्टकट तो हर कोई मतलब याद करके गया होगा कम से कम। हाइपरलिंक का भी Ctrl+H है नहीं। तो 47 का जो आपको राइट आंसर होगा वो है सी। अब देखो कैसे है, फर्स्ट का है 2, रिप्लेस करना है तो Ctrl+H करेगा, है नहीं। सेकंड का है 1, इंसर्ट हाइपरलिंक तो Ctrl+K। ठीक है, थर्ड का 4 है, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+X से कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चंस में देखिए क्या है, विच आर द फॉलोइंग प्राइमरी फीचर इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। कौन सा प्राइमरी फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का? तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने कि डाटाबेस मैनेजमेंट है ये एक ऐसा जिसको यूज किया जाता है क्रिएटिंग मैनेजमेंट और क्वायरिंग डेटाबेस को। ठीक है, अब देखो भाई साहब, मैच कितने आए हैं, वो कंप्यूटर जनरेशंस दिए, फिर कुछ और, अभी भी इनका जी नहीं भर रहा तो कुछ और इन्होंने दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 49 को आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं ये। तो फर्स्ट का आएगा क्या, F5 से क्या करते हैं, F5 से आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ठीक है, और 2 में 2 का 2 है, मतलब ये डायरेक्ट इसका आंसर है नहीं। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन फ्रॉम बिगिनिंग, है नहीं, हम रिफ्रेश भी करते हैं एकदम। Shift+F5 करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द करंट स्लाइड से। Alt+F5 से क्या होंगे, स्टार्ट होगा प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर व्यू में, और ES से होता है एंड करना, प्रेजेंटेशन को एस्केप करना, मतलब है नहीं, वहां से गायब करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, MS पावर पॉइंट कितने क्वेश्चन आए हैं। MS पावर पॉइंट जो है स्लिड मास्टर फीचर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का अगर आपने आंसर किया है तो फटाफट से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका ये वाला, सी पार्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है, स्लाइड मास्टर कैन नॉट यूज टू मॉडिफाई, इसलिए स्लाइड मास्टर को हम यूज नहीं कर सकते मॉडिफाई करने के लिए। क्या चीज मॉडिफाई करने के लिए, ये तो बताओ। ठीक है, स्लाइड मास्टर को हम कैन नॉट यूज टू मॉडिफाई द फॉन्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड, उसको फॉन्ट और बैकग्राउंड स्लाइड का यूज मॉडिफाई करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। 51 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सही आंसर क्या होगा इसका वो भी देखेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल, ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में क्या चीज ट्रू नहीं है। तो POP3 इनेबल करता है यूजर को कि वो उनकी ईमेल मैसेजेस को डायरेक्टली सर्वर से जो है करे विदाउट डाउनलोडिंग में, बिना उनको डाउनलोड करने हम देख सकते हैं सर्वर से ही। ठीक है, तो यही एक अच्छा ऑप्शन है, बाकी सारे गलत हैं। फिर ठीक है, फिर ये कुछ पैसे दे देते हैं, फिर इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो मतलब इजी पेपर था। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। पैसेज कही है सत्याग्रह गांधी जी के ऊपर, है ना। गांधी जी ने जो है सत्याग्रह साउथ अफ्रीका से लॉन्च किया था, नहीं सॉरी, साउथ अफ्रीका से लॉन्च नहीं किया था। गांधी जैसे ही आए थे साउथ अफ्रीका से तो उन्होंने पहला सत्याग्रह जो है लॉन्च किया था, लेकिन ये कहाँ से लॉन्च किया था, ये चंपारण से लॉन्च किया था। बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट। ट्राइब्स को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 58 का जो आपका राइट आंसर है वो है ये, थारू ट्राइब जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की है, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा गलत है। ठीक है, 59 देखिए, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही जवाब है। क्यू देखो, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर। कौन से स्टेट के साथ कॉमन बॉर्डर नहीं है, तो वो है आपका 61 का राइट आंसर है आपका डी, असम का नहीं है, बाकी इन सब का बॉर्डर है, कॉमन बॉर्डर है म्यांमार के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको पहले बर्मा भी कहा जाता था। 62 देखिए, द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को क्या कहा जाता है, क्या नाम है उसका। तो उसका नाम है आपका कोरमंडल। कोरमंडल किसका है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कोस्ट का नाम है कोरमंडल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ किसका बॉर्डर है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है सी, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है, याद रखना सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसका बॉर्डर है नेपाल, भूटान और चाइना के साथ, चाइना, चौकतू चाइना के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लीजिए, विच आर द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो आचार लेक जम्मू कश्मीर में है। जोजिला पास जो है लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है गुजरात की है। बिल्कुल सही जवाब चल रहे हैं यहाँ पे। जीके जीएस तो एकदम मस्त लग रहा है, बिल्कुल इजी लग रहा है, इजी लेवल लग रहा है। लाइक करो इसी खुशी में, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, इंदिरा कोल सिचुएटेड कहाँ पे है? तो 67 का फटाफट से कमेंट करो, क्योंकि इसका जो है आंसर है वो है आपका लद्दाख में, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस इंडिया का जहाँ इंदिरा कोल है वो लद्दाख में है। फिर ये क्या है? काशीदा एक एम्ब्रॉयडरी है, फेमस है कौन से स्टेट की? तो वो है आपके जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। याद रखना, ये एम्ब्रॉयडरी से भी क्वेश्चन आ गया। 69 देखिए, कौन सा जम्मू कश्मीर का फोक डांस नहीं है? तो डांगी नहीं है, बाकी धूमल है, हफीजा है, रोफ है, ठीक है, तो डांगी नहीं है। 70 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जो है लैंग्वेज नहीं है? मोनपा नहीं है, बाकी उर्दू है, गोजरी है, कोशुर है, काशिर है नहीं, बाकी भरवाई है और भी है। डीपेस्ट लेक कौन सी है? डीपेस्ट लेक कौन सी है जम्मू कश्मीर की? क्वेश्चन नंबर देखिए 71 है, तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए, एक क्वेश्चन तो आपकी तरफ से भी बनता है। तो डीपेस्ट लेक जो है वो है आपकी मंसबल लेक, वुलर लेक, फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, मंसबल लेक है। अब देखिए यूनियन टेरिटरी कब एग्जिस्टेंस में आई थी? तो 31/10/2019 में आई थी, ठीक है। 72 का राइट आंसर क्या है आपके पास? वो है बी, 31/10/2019। अब देखिए इनमें से कौन सा कोल्डेस्ट प्लेस है? वो तो द्रास है, पूरे इंडिया में है नहीं, द्रास -42 डिग्री वहां पे जाता है तापमान, है नहीं, इतनी ठंड होती है। ओ माय गॉड। इंडिया का लार्जेस्ट जो है टनल क्या नाम है उसको? जो इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल है, क्वेश्चन नंबर 74, क्या नाम है उसको? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, इसको बोलते हैं हम 74 के क्वेश्चन नंबर आंसर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चिनानी नासरी टनल भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सा टाउन है जिसको एप्पल टाउन बोला जाता है? तो 75 का जो सही आंसर है वो है आपका सोपोर, शोपिया नहीं है, ठीक है, वो राइस बोल है, सोपोर है। 76 क्वेश्चन नंबर देखिए 76, रूलर, किस रूलर ने जो है लेबल लगाया था जन्नत, बोला था कि कश्मीर जन्नत है? तो जहांगीर ने बहुत सारे बाग बनाए हैं, तो वही दीवाना था और हम भी दीवाने हैं, ठीक है। जन्नत जो है कश्मीर तो है ही। अब देखिए, और लेकिन हमारा ही है कश्मीर, है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, 1 से आगे होते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट, 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और बोलता है जो रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके मतलब 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखिए बात क्या है इसमें, राइट आंसर क्या है इसमें? इन्होंने क्या पूछा है कि सारे नेचुरल नंबर और जिसमें 0 भी आ जाए तो उसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि P and Q जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो PQ 64 है, तो इनमें से कौन सा P+Q क्या होगा? तो 78 का जो राइट आंसर है वो आपका होगा C पार्ट। अब कैसे होगा वो हम इधर निकाला भी है, लेकिन उन्होंने रॉन्ग किया है, ठीक है। 79 देखिए, एक स्कूल में 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं। अगर 18% स्टूडेंट जो है कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो कितने परसेंट जो है स्टूडेंट क्या है, नाइदर प्ले फुटबॉल। 18% अगर स्टूडेंट है ना ही वो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, तो बोथ जो दोनों चीजें खेलते हैं वो कितने होंगे? तो वो आपके 8% होंगे। आप निकाल लो, है ना, देखो इधर। अब देखिए ये इतना आंसर, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300? थोड़ा इतना सा दिया होता तो तब तो ठीक था, लेकिन इनने बोला 20%, 25% का, फिर उसका 300%। तो ये भी इजी ही क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, तो राइट आंसर इसका बी है। तो 80 ही क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले थे, बहुत ही अच्छा पेपर हमें देखने को मिला, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और
जेकेपी के अभी फॉर्म चल रहे हैं, उसका पेपर भी इसी लेवल का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे घर बैठे जेकेपी का फॉर्म भराना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 80 सॉरी दोबारा से लिख लेते हैं, ओहो ये तो मिट ही नहीं रहा है, ओ माय गॉड, फिर से करते हैं, रुक जाओ। हाँ इस नंबर पे 8082874110 मैम आपका फॉर्म भरेंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे बहुत सारे बच्चे पहले भी जेकेपी बॉर्डर बटालियन में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ठीक है, और हमने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। तो आज भी हम बिल्कुल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे जो है मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।